Vishnu. Observed annually on the ninth day, the Navami, of the bright half, Shukla Paksha, in the month of Chaitra, March to April. It is a significant event for Hindu devotees. In essence, Ram Navami is a festival of devotion and joy, celebrating the birth of a revered deity and emphasizing the values he represents, which is dharma, the righteousness, courage, and devotion to family and one's duty. The scale of celebration varies considerably across the different regions and communities in India and abroad. On such a great day, I welcome you all to step into the mesmerizing world of Ramayana, a story that has captivated hearts for generations. This year, Ramayana 2025 brings an immersive, larger than theatrical production that blends traditional storytelling, dynamic choreography, and cutting-edge visual effects to create an unforgettable experience. With this, I welcome you all to Ramayana. Jai Shri Ram. Chapter 1, Balakanda, the childhood of Lord Sri Ram. Our musical drama is a journey to the heart of Ramayana. Beginning in the golden city of Ayodhya, experience the overwhelming joy and celebration surrounding the birth of Lord Rama. Share the pride of King Dashratha and the devotion of the people as they welcome their beloved prince. Feel the anticipation as the young Rama and Lakshmana embark their Gurukul education and witness their bravery as they assist Vishwamitra against formidable foes. Be moved by the elegance and drama of Sita Swayamvar, a spectacle of regal splendor. We will then conclude the heartful exchange of garlands between Lord Sri Ram and Sita Maiya, a union that marks the beginning of the new era. आज्ञा दीजिए हमें पिताजी गुरु की सेवा करने की। युद्ध विद्या हम सीखेंगे निशाचरों को हरने की। रघुवंशी है हम बालक कुल गौरव को बढ़ाएंगे।
आशीर्वाद दीजिए पूज्य पिताजी, ऐसे बाण चलाएंगे, ऐसे बाण चलाएंगे। मंगल प्रभात की आई बेला, पवित्र हुआ हर धाम, दर्शन देंगे मंच पर लखन सहित श्री राम, लखन सहित श्री राम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। जगमग हुई अयोध्या नगरी, मन मंदिर श्री राम विराजे। आए बड़े अब धूमधाम के, धूमधाम से हो निर्माण। राम नाम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये जहान। जगमग हुई अयोध्या नगरी, प्रकट हुए श्री राम। राम नाम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये जहान। जगमग हुई अयोध्या नगरी, प्रकट हुए श्री राम। A powerful gust of wind ruffled the leaves of the palace gardens, carrying with it an aura of otherworldly power. Before the king could comprehend the disruption, a figure materialized before him, radiating an intense spiritual energy. It was Rishi Vishwamitra, his eyes gleaming with a mixture of urgency and profound wisdom, his aesthetic frame unmistakable. O Maharaja Dashratha, the sage began, his voice resonating with authority. I come to you with a plea born of necessity. Demons, wild and powerful, plague the forest bordering your kingdom. Tarka, a monstrous sorceress, and Maricha, a shape-shifting demon, spread terror and destructions, hindering the peaceful practice of dharma. Ram and Lakshman accompany Rishi Vishwamitra and follow his guidance and fulfill your duty for dharma. Please go. With Talka's demonic reign ended, sage Vishwamitra, accompanied by his new battle-hardened young Rama and Lakshmana, journeyed towards Mithila, the kingdom of King Janaka. The air buzzed with anticipation as they neared the royal city. The news of upcoming Swambara, where Sita's hand would be bestowed upon the worthy, had spread far and wide across the nation. Vishwamitra, his mission of protecting his yagna was about to complete. He sought to witness this momentous event, where his two young companions, standing as silent testaments to their prowess and courage, which they have gained in their recent battles of life. The majestic Janakpur, bustling with kings and princesses from across the land, awaited the arrival of venerable sage and his renowned protectors, setting the stage for the epic events of Sita Swayamvar, which was about to be unfolded. मंत्री जी, महाराज, आज जनकपुरी के भाग्य का
सबसे बड़ा दिन है, यानी सीता स्वयंवर। इसलिए मैं आशा करता हूं कि स्वागत तथा अन्य व्यवस्था में कोई भी त्रुटि न रहने पाए। महाराज, आपके आदेशानुसार सब व्यवस्था ठीक कर दी है। हर अतिथि की सेवा के लिए अतिरिक्त कर्मचारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। मंत्री जी, धनुष यज्ञ के इस पावन पर्व पर महामुनि विश्वामित्र जी ने भी आना स्वीकार कर लिया है। इसलिए मुख्य अतिथि के नाते उनके स्वागत का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। और हाँ, यह भी सूचना मिली है कि लंकापति रावण भी स्वयंवर में भाग ले रहे हैं। अब ईश्वर ही रक्षक है। अब आप शीघ्र ही सब देश देश के राजाओं को इस राज्यसभा में बुलवा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। राजा धीराज, जनक की सभागृह में सीता स्वयंवर के हेतु महाराज कौशल पधार रहे हैं। महाराज धीराज, राजा जनक की सभा में सीता स्वयंवर के हेतु महाराज हरियाणा पधार रहे हैं। राजा धीराज, मिथिलेश के सभागृह में सीता स्वयंवर के कल्याणार्थ ऋषि विश्वामित्र जी पधार रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव राजा जनक। आइए ऋषिराज, आसन को सुशोभित कीजिए। कल्याण हो। मुनिवर, आपके दर्शन पाकर मैं आज धन्य हो गया। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आपके साथ ये दो बालक कौन हैं? राजन, ये दोनों राजकुमार राजा दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। धन्य हो मुनिवर। उपस्थित महानुभाव तथा आदरणीय ऋषि विश्वामित्र जी, मैं आप लोगों के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप लोगों ने दर्शन देकर मिथिला नगर की शोभा बढ़ा दी है। जनकपुरी के प्रवास में यदि आपकी सेवा में कुछ भी कमी रह गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मेरी पुत्री सीता अब विवाह के योग्य हो चुकी है। अस्तु, मैंने धनुष भंग की प्रतियोगिता के आधार पर स्वयंवर का आयोजन किया है। आशा है आप लोग मंत्री जी के घोषणा पर इस पवित्र कार्य का श्री गणेश करेंगे। मंत्री जी, सभा कक्ष में हमारा प्रतिज्ञा पत्र प्रसारित किया जाए। आज्ञा स्वीकार है महाराज। आते हैं जिस भाव से भक्तों के घर भगवान, उसी भाव से आप भी पधारे हैं श्रीमान। अब आप लोग राजा जनक की प्रतिज्ञा ध्यान पूर्वक सुनिए। सावधान योद्धागणों, सुन लो ध्यान लगाए। प्रतिज्ञा हम राजा की कहे, स्वयंवर होत है जाए। श्री महादेव का धनुष रखा है वीरों की परीक्षा को, तोड़ सकेगा कौन इसे
रखा है आर्य परीक्षा को। महाराज की शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उनको अर्पण होगी। इसीलिए हे आर्य वीरों, आगे बढ़ो और अपनी भाग्य की परीक्षा करो। इधर देख लो मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर खड़ी है जानकी हाथ लिए वरमाल। अब आप जिस प्रकार क्रमानुसार इस सभा में पधारे हैं, उसी प्रकार बारी बारी से अपने बल का प्रयोग कीजिए। चलिए। वाह मंत्री जी वाह, ठीक पहले पहल मेरा चयन ठीक किया। हमारा धनुष तोड़ने का खानदानी पेशा है, फिर इस बड़े धनुष को तोड़ने में लाज भी तो आ रही है। और हरकत इसकी देखकर अगर ये सचमुच ही विशाल है और हिल भी ना सका तो मेरा क्या हाल होगा? जी नहीं, यदि मुझसे धनुष न टूटा तो मैं आप लोगों के सामने इस पिनाक को कठोर दंड दे दूंगा। प्रणाम राजा जनक, मेरा अभिनंदन स्वीकार करो। मैं हरियाणा नरेश देवेंद्र सभा में उपस्थित वीर शूरवीर राजाओं के समक्ष आज अपने बल का प्रतिबिंब करूंगा। यह शिव जी का धनुष, आज इसे मैं 2 खंडों में विभाजित कर दूंगा। इसके एक खंड को मैं उत्तर कैलाश की तरफ और दूसरे खंड को मैं दक्षिण लंका की तरफ उछाल दूंगा। इसको नहीं तोड़ पाया तो अपनी प्रजा को क्या मुख दिखाऊंगा। किसमें साहस है जो इस पवित्र धनुष को स्पर्श करने का दुस्साहस भी कर सके? इस शिव धनुष को उठाने और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रथम और अंतिम अधिकार केवल और केवल लंकापति कैकसी पुत्र रावण का है और किसी का भी नहीं। मैंने अपने इन्हीं हाथों से कैलाश पर्वत उठाया है, तो इस धनुष को तिनके के समान उठा लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब आप सभी देखेंगे जो लंकापति रावण कहता है वह उसे करके भी दिखाता है। लंकापति रावण तेरी पुत्री कुंभनसी को मधु दैत्य भगा ले चला है। मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, विभीषण जप में है और कुंभकर्ण सो रहा है। शीघ्र पुत्री की रक्षा करो।
हैं? ये क्या? इस समय मुझे शीघ्र लंका जाना जरूरी हो गया है। लौटकर मैं इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या सचमुच ही आर्यों का बल समाप्त हो चुका है? हे शूरमाओं, आप लोगों के ही भरोसे पर मैंने यह प्रतिज्ञा की थी। किसे मालूम था कि क्षत्रिय वीरों के लिए यह धनुष धौलागिरी पर्वत से भी महान साबित होगा। है देश देश के प्रियजनों, हम किसे कहे बलशाली है। आज हमें विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। कौन चुनौती दे सकता है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है? गेंद के जैसे गिरा दूं खेल कर इस चाप को, नाप दूंगा लोग तीनों तान कर इस चाप को। इस सभा में आज जो रख लू ना अपनी आन तो, फेंक दूंगा आज से इस धनुष और इस बाण को। गुरुदेव, भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं राजा जनक की चुनौती का उत्तर अपने बाएं हाथ से देना चाहता हूं। लखन, तुम क्रोध न कीजिए, यह बात मेरी सुन लीजिए। बैठे चुप है राजे महाराजे, है सिर पर गुरु हमारे। आपका कहना सच है भैया, लेकिन सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको कटुवानी सहन नहीं, वे चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है। मिथिला नरेश का यह भाषण बच्चे बच्चे को खलता है। धैर्य से काम लो लक्ष्मण। राजाओं की निराशा देखकर राजा जनक का कहना यथार्थ ही है, क्योंकि वीरों की इस कसौटी में उनकी पुत्री सीता के भावी जीवन का प्रश्न है। तुम शांति धारण करो। आज रघुवंशी बालकों के कौतुक प्रदर्शन का स्वर्ण अवसर आ पहुंचा है। दशरथ नंदन राम, आगे बढ़ो। राजा जनक का संताप दूर करो। हमारी राखो लाज हरी, प्रभु जी राखो लाज रही। बड़े बड़े वीर सभा में हारे, धनुष न काहू से डरी। हमारी राखो लाज हरी। तम का उदाम निज मिज बलयऊ, पुनि न बदनु मंडल समभयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लाखा देख सब उठाड़े। तेहि चन राम मध्य धनु तोरा, भर भुवन हुनि घोर कठोरा। भर भुवन धुनि घोर कठोरा, वन भुवन धुनि घोर कठोरा।
प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान जनक, आज तुम्हारी सभा में भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? गुरुदेव, आज पुत्री सीता का स्वयंवर था और साथ में शिव धनुष भंग प्रतिज्ञा के आधार पर था। धनुष भंग? धनुष भंग? शिव धनुष? ओ निर्भय मनुष्य, मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है? ओ मूढ़ जनक, जल्दी बतला, धनुआ किसने तोड़ा है? किसने आज भरी सभा में सीता से नाता जोड़ा है? शीघ्र बतला अपराधी को, वरना चौपट कर दूंगा। है राज्य जहां तक तेरा, उलट पुलट मैं कर दूंगा। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, वो भी है कोई दास तुम्हारा। ऋषिराज, इस कार्य की सफलता में आपका ही आशीर्वाद है। मूर्ख बालक, बोल, क्या इस सभा में अपराधी तू ही है? शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने अपराध किया वह दास आपका ही होगा। ओ निर्भय बालक, तेरा इतना साहस? सेवक वह है जो सेवा लायक है, जो बैरी का सा काम करे वो मार डालने लायक है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो बहुधनुई तोड़े, तो कभी ना ऋषि आपे इतने। इस धनुष में क्या लाल लगे, जो स्वामी गरमाए इतने। वो दूध मुही बच्चे, तेरा इतना साहस? देश देश के राजा मेरे भय के मारे चुप हैं, और तू राई लासा बीज उछलता है। मुझे भी आश्चर्य है कि धनुष टूटने पर सकल सभासदों ने तालियां बजाकर हर्ष ध्वनि की, लेकिन आप न जाने क्यों आंवले की तरह खट्टे हो रहे हैं। सावधान, तू मेरे क्रोध को न उबार। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाई ने मीठे वचन कहे, क्रोध तुम्हें चढ़ आया, सबसे पहले वे बोले, तभी चोर ठहराया। ना समझ, होश में बातें कर। मुझे तेरी भोली सूरत पर दया आ रही है, वरना हम भी क्रोध से देखेंगे। सूरज डूब जाएगा, पवन को रोक दे ऐसे, समुंदर सूख जाएगा। बेईमान छोकरे, चुप कर, वरना जीभ काट के रख दूंगा। बार बार वर्षा चमकाकर ऐ बादल मत गरजो तुम, पानी की एक बूंद नहीं, आंसू बनकर मत बरसो तुम। धार इस फरसे की मस्तक चीर कर रख देगी, यज्ञ भूमि ही रणभूमि हो जाएगी आज। ओ बबूल के कांटे, ईश्वर जाने इस फरसे को क्या हो गया है। हाथ भी बढ़ता नहीं, इस हाथ को क्या हो गया है। क्षमा कीजिए गुरुदेव, बालकों की प्रकृति उद्दंड होती है, इसे क्षमा कर दीजिए। जान पड़ता है तेरी मौत तेरे सर पर मंडरा रही है। गुरुदेव, आप तो विद्वान हैं। बालकों के साथ उलझने में लोग आपकी ही जग हंसाई करेंगे। मैं मीठी बातें करता हूं, ये जहर उगलता जाता है। मैं आप कहता हूं, ये तू बकता जाता है। क्या करूं, एक नरम और दूसरा गरम। विश्वामित्र, अपने चेलों की चालाकी तो देखो। ब्राह्मण होकर आपको तो शांतिवादी होना चाहिए। यह राजपूती बाना कब से पहन लिया है महाराज?
ऋषिराज, हम आपके अनुचर हैं। गुरुजनों के सामने बालक गलती करते ही हैं। इसे क्षमा कर दीजिए। चुप रह, तू मुझे ही सीख देने आया है। मैं परशुराम कहलाता हूं, तू भी राम कहलाता है। मेरा ही आधा नाम छीनकर मुझ पर ही धाक जमाता है। शांति दूत कहकर यदि तू वीर बनने का दम भरता है तो ले इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा, अन्यथा तुम दोनों की मृत्यु निश्चित है। तो लाइए गुरुदेव, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं आपके भ्रम को दूर किए देता हूं। प्रिय राम, मेरा भ्रम मिट चुका है। आपकी मीठी वाणी से मेरा क्रोध शांत हो गया है। फिर भी राम, मैं यह जानना चाहता हूं कि बालक होकर भी आपकी विजय का रहस्य क्या है। पूज्य ब्राह्मण, हमारी विजय का रहस्य यही है कि हम क्रोधी को हंसी, अभिमानी को नर्म बाणी और शत्रु को मित्रता से जीतते हैं। यही हमारी विजय का रहस्य है। कुलभूषण राम, आप धन्य हैं। बाहुबल के साथ आप ज्ञान के सागर भी हैं। अज्ञानतावश इस बूढ़े ब्राह्मण ने जो अपशब्द कहे, दोनों भाई क्षमा करना। धन्य हो राम, तुम धन्य हो। पुत्री सीते, आगे बढ़ो और भाग्यशाली राम के गले में वर माला पहनाओ। Wow, what a immersive journey. A heartful thank you to our incredible cast and crew, our generous sponsors, and most importantly, you. What an amazing audience. This was just a beginning. We are setting our sights for even bigger for our next production. A grand, full-scale Ram Leela, bringing the epic from Lord Rama's birth to his glorious coronation. Get ready for another spectacular show this coming Dashera. Please watch out this space. As we come close towards the end of this journey, let us take a moment to acknowledge the phenomenal team that has brought this vision to life. Bringing the divine characters to the stage, Lord Sri Ram played by Tuptesh Kanvinde and Sita Maiya played by Priyanka Kanvinde. Lakshman played by Sunit Diwar. Dashrath played by Dr. Rajesh Rathod. Kaushalya Maiya played by Dr. Jyoti Rathod. Ravana played by Devinder Manhas. Sri Janak was played by Nirish Gunhal. Parashuram played by Abhinav Sinha. Vashisht and Vishwamitra was played by Kunal Lal. Kaushal Naresh by Ritam Karmakar. Haryana Naresh played by Manish Rathod. Young Shri Ram played by
Adrian Shishodia, and young Lakshman played by Joshua Shishodia. The soul-stirring narration voiceover by Nimit, and the divine Chopai singing by Sri Abhiyogi. A special mention to the grateful dancers who brought their story to life through the moment as performed by Monali's Dance Studio. The dancers are Raisa Gupta, Komal Mathur and Beata Shishodia. Behind the scene, making it all possible, the creative directors are concepts and dialogues done by Mr. Sunit Diwar, dance choreography by Monali Mohite, music and live singing by Abhiyogi, audio production by Manish Rathod, digital content by Nimit Shishodia, makeup and admin by Vidya Diwar. A heartfelt thank you to our entire cast, crew, and most importantly, you. Now, as we conclude, we invite you all to join us in the Ramji Ki Aarti. Please stand on your seats, turn on your mobile phone lights as diyas, and immerse yourself in this divine moment. After Aarti, feel free to take pictures, and we can bring this evening to a closure. Thank you.